So good morning once again, everyone. Everybody has joined? Yes, children. Neil is there. Yash, Neil. नहीं है अभी तक. Just wait a moment, children. I'll send them an invitation. They have not joined. So let us begin today's session with a beautiful quote which is written here on the board. You can see. What is that? Learning is never done without errors and defeat. Right, children? So you all know this quote, meaning of the same. What it says, learning is never done without errors or defeat. You know, that means to put the efforts is our job. Result is the next thing. Obviously, that will be there. Goal will be ours only. The only thing is we need to keep hard working. We need to keep studying. And for that, obviously, sometimes you might get disappointed. Sometimes you might fail in that. There may be some errors, but it is a part and a parcel of our life. And you should accept it because the word fail itself says that the first attempt in life. So never think that if you have failed in achieving something, that is not the end of everything. It is just the beginning of everything. Remember that. So with this beautiful quote, we will begin with our today's session, today's class. So everyone, let's begin with today's session then. Once again, welcome you all, and I hope you are solving multiple choice questions which I am sending you time to time. और next week में अपना test भी है. I hope you all are preparing for the test. Yes, kiddos? Yes, sir. Great. And what about other people? Yes, Urvashi and Mohammed. Zainab ने बोला हाँ, बाकी लोग? No, sir, I'll start today. Okay. Ashna, start preparing, bachcha log. So you tell me then when can we have the examination or the test so that I will have to set the paper. Okay? It will be a small test, 30 questions only, not much. So you can prepare it. If you want supplementary questions, you just ask me, I will forward that. Clear? So shall we start with the today's topic? I hope you all know how far we studied yesterday, and this chapter what we are learning is the big chapter, or you can say huge chapter, but important hai, interesting hai. So a lot of mnemonics tricks I have got from the same chapter, and that way you can learn the same, right? चलो फिर आज शुरू करते हैं अपना actual chapter, which is going to be with first phylum. Now you tell me which phylum we are going to study now. आप लोगों को वो पूरा ट्री डायग्राम याद है ना? अभी लर्न हो गया रहेगा सबको. बोलो बच्चों. phylum क्या रहेगा? Phylum Porifera. Exactly, phylum Porifera. This is going to be the first phylum. Now we got to learn it, right? तो शुरू करें अभी phylum Porifera के साथ में. Everyone ready? Mohammed, are you ready, बच्चा? Boys have not joined yet. 3 boys are remaining to join the meeting. चलो, उपमन्यु नहीं है अभी दिख रहा. Neil is there. Neil भी नहीं है. Yash भी नहीं है. They haven't joined yet. So they will join. We'll continue. Phylum Porifera. Very important phylum from which questions are expected in your NEET examination. Okay, सबसे पहला phylum है, सबसे simple organisms का phylum है. आप लोगों ने सुना है इन organisms के बारे में, right? You all have heard about organisms which
belong to this group, right? There are two words here. Porifera, that means pores-bearing animals. So when you expand the word porifera, it will be made up of these two words, pores-bearing. Pores means what? Small openings, small apertures, holes on the body. Am I right, children? When you say porifera, that will be what? Pore-bearing animals. They have small apertures on their body. So they are called as poriferans. Now, if you look at your NCERT textbook, you will get some images, basic images you will get. I'll again share those images with you. You can just have a glance on that and then we will begin. Examples of the same phylum. Okay, bachcho. If you have got NCERT textbook with you, you can see there also. But still, just a moment, I show you that. Images from your NCERT textbook and then we will proceed with the details. Is that okay? या आपके पास NCERT textbook है तो उसमें भी आप images देख सकते हो. I will tell you about each in detail then. I got one PowerPoint presentation with me. I will share that with you people on the group what we'll have. So this is what the phylum Porifera all about. I just want to show you the images of, yeah, look at this. यहाँ देखो आप लोग. You all can see 3 images. These are directly from your NCERT textbook. समझ में आ रहा है बच्चों? These are the images from your NCERT textbook. You see the names A, B, C. Can you tell me the names? क्या क्या है वो नाम? बोलो बच्चों. What is A, B? Cycon. Correct. So A is your cycon, the most common example which belong to this. So example से शुरू करेंगे हम लोग. पहले देख लो इनको. Cycon. It is also known by another name, Cypha. ये भी याद रखना है आपको. Cycon is also called as a Cypha. SCYPHA. Cypha. इसको मतलब this is your NCERT example. Another example you see from your NCERT. Second example देखो बच्चों क्या दिख रहा है? It is, what is that? Third one actually. That is going to be your Spongilla. Can you see there? Third is your Spongilla. Second one is your Euspongia. अभी ये Spongilla का characteristic features हैं. It is found in the fresh water. Spongilla is the only poriferan which is found in the fresh water. और ये सबसे important question है. ये repeat होगा वापस से मैं बताऊंगा आप लोगों को. Spongilla is the only poriferan which is found in fresh water. All right, children. Then comes your third one. That is Euspongia. Is it there? List बनाओ आप लोग. चलेगा. It is important. Euspongia. Common नाम क्या है इसका है? अभी board आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, but I will, when stop sharing that, you will be able to see the board also. So Euspongia is also known as bath sponge. इसको ये क्या बोलते हैं commonly? Bath sponge. It is used in making those sponge which we use for bathing. Also, it has numerous uses. इसको सिनेमा हॉल्स में भी यूज करते हैं as a shock absorber. आप लोगों ने देखा होगा है ना? When we go to watch movies, we see something soft on the floor, on the sides, on the walls. वो यही होता है. It is also used in the cinema halls as a shock absorber. समझ में आया बच्चों? Can also be used in cinema halls. Then another example. अभी इनमें ये इसमें 3 examples आपके सामने हैं जो NCERT वाले हैं. अभी कुछ non NCERT वाले examples भी मैं बताता हूँ आपको. So you can remember them. Like it includes Leucosolelia.
ये फोर्थ एग्जांपल में बोल रहा हूँ, याद रखना है आपको। ल्यूकोसोलेनिया इज नेक्स्ट एग्जांपल। अब इन एडिशन टू दैट यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला अनदर एग्जांपल। इसको कॉमनली बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। ये सब कॉमन नाम आपको याद रखने हैं, बाहर ही होने चाहिए। वीनस फ्लावर बास्केट क्यों बोलते हैं इसको वैसे, एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्पंज विच इज गिफ्टेड इन जापान। वेडिंग में लोगों को ये गिफ्ट दिया जाता है, वेडिंग गिफ्ट करके, एंड इट इज वेरी कॉस्टली ऑल्सो। तो ये भी याद रखना, आपको पूछ सकते हैं लोग कि ये यूप्लेक्टेला क्या होता है नीट एग्जामिनेशन में। So it is actually a kind of a sponge which looks beautiful and it is gifted in Japan as a costly gift. Did you understand? ये भी लिखना जरूरी है क्या? We want this also gifted in Japan in weddings as a costly gift. समझा बच्चों? Are you all understanding this? Come on, tell me. और एक लास्ट एग्जांपल याद रखो, क्लियोना। अब ये भी आपने एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, क्लियोना। The speciality of this क्लियोना is कि ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको हम लोग सल्फर स्पंज भी बोलते हैं। What it does? सल्फर स्पंज। क्यों सल्फर स्पंज बोलेंगे हम लोग इसको? Because it produces sulfuric acid H2SO4, और ये H2SO4 can damage those pearl oysters. You know, इसीलिए ये एक harmful kind of sponge होता है, economically harmful sponge, you can all say that. बोर्ड नहीं दिख रहा है ना, कौन मैसेज भेज रहा है कुछ? What you have sent in the message or a chat box? हाँ उपमन्यु, don't worry, nothing is there. I just started with the class. फाइलम पोरीफेरा हमने शुरू किया है। उपमन्यु, are you listening? और उसके एग्जांपल्स बोल रहा हूं मैं। There are certain NCERT examples and non-NCERT examples. तो इसमें भी देखो, मुझे बताओ पहले 3 एग्जांपल जो है ये वाले, फर्स्ट 3 एग्जांपल्स, these are from your NCERT. तो ये टेक्स्ट बुक वाले एग्जांपल्स हैं, समझ में आया बच्चों? यस। और उसके बाद में जो एग्जांपल्स दिए हैं वो वाले नॉन एनसीईआरटी वाले, मतलब आउटसाइड एनसीईआरटी। तो ठीक है, मुझे वो इमेजेस दिखाना था आपको, सो आई जस्ट स्टार्टेड विद दैट। आई होप नाउ यू ऑल आर कंफर्टेबल। अभी देखो आप लोग बोर्ड पे, उपमन्यु कैन यू सी देयर द बोर्ड? यश इज देयर? मीटिंग में यश है क्या? नो, यश इज नॉट देयर। नील भी नहीं है, नॉट फाइंडिंग देम। चलो अब बताओ मुझे, these examples are clear to you? What are the examples? Can you all read this? Sycon, Spongilla, Euspongia. Common नाम भी याद रखना है। This Spongia, yes, Spongilla is very important because this is the only sponge which is found in the fresh water. बाकी के जो sponges हैं, they are found in sea water only, exclusively marine water. ठीक है बच्चों? और ये 3 आपके NCERT वाले एग्जांपल्स हैं। ये जो है बाकी के, these are non-NCERT, मतलब outside your NCERT textbook, but they are equally important. Am I clear? उपमन्यु समझ में आया बच्चा? अभी अभी हमने स्टार्ट किया है। I just started with the examples. All right? चलो आगे बढ़ते हैं। Now when you proceed, ये वाली चीज बोल रहा था मैं, क्लियोना is another example of this sponge which produces sulfuric acid, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं sulfur sponge, and this sulfuric acid is responsible for destruction of those pearls produced by the oysters, and hence you can say that कि ये harmful है to that industry, pearl industry के लिए harmful kind of a sponge है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? Everybody follow Yes. this? Very good. You can show your response through those thumbs also.
अब आगे बढ़ो। स्टडी ऑफ द स्पॉन्जेस को बोलते हैं पैराजूओलॉजी। एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। क्या होता है ये? पैराजूओलॉजी इज अ स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस। याद रखो, हाँ, study of sponges and certain important biological days also you need to remember every time. I will give you a separate list of the same. जैसे अभी 31st May को एक special biological day था. Anybody know what was that day? क्या था वो day? 31st May को क्या था? Don't tell me किसका birthday था. Biology से related day मैं पूछ रहा हूँ. Anybody has got an idea? Anti-tobacco day. Yes, very good, Ashna. Nice. Anti-World No Tobacco Day. उस दिन अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस टोबैको। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेज याद रखने हैं आपको। लाइक अभी ये 5 जून को भी एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल डे आएगा। क्या होता है 5 जून को? किसका बर्थडे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। Yes, smart girl. See other students. See, she's answering very quickly like this. ऐसे आपको टिप ऑफ फिंगर पे होने चाहिए सब डेज। 5th जून इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वैसे ही 1 दिसंबर इज वर्ल्ड एड्स डे। सुना है ना आप लोगों ने ये सब डेज? उपमन्यु पता है कि नहीं बच्चा? यस, या ग्रेट। तो ऐसे एक लिस्ट है पूरा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल डेज का। आई विल शेयर दैट with you people soon। और फादर्स इन बायोलॉजी ऑल्सो, वो हमेशा मैं बोलता रहता हूँ ना, तो वो एक लिस्ट। ये दो चीजें हैं, साइड बाय साइड आपको पढ़ते रहना है। नाउ कमिंग बैक टू दिस, पैराजूओलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस। क्लियर है बच्चों? ठीक है, कॉन्फिडेंट एवरीवन? अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग। चला इरेज दिस व्हाटएवर इज रिटन हियर। आई नीड अ बोर्ड। इरेज करो इसको मैं बच्चों, ठीक है? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस फाइलम। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला, ये फाइलम में दो वर्ड्स हैं, पोरी एंड फेरा। जिसमें पोरी मतलब पोर्स एंड फेरेंस मतलब बियरिंग। ऐसे एनिमल जिनके बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं, है कि नहीं? तो इफ यू लुक एट एनी एग्जांपल, तो उसमें आपको दिखेगा लाइक ये एक स्पंज है। तो हियर इट इज the body which will have lots of small pores on the body। ये इनका बेसिक फीचर है। दो टाइप के पोर्स होंगे, दो टाइप के छेद। कौन से दो टाइप के पोर्स? बोलो बच्चों। ऑस्टिया एंड ऑस्ट्यूला। या स्मार्ट गर्ल, वेरी गुड। ये वाले जो छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं, these are called as ostia। सिंगुलर नंबर ओस्टियम, प्लूरल नंबर ओस्टिया। Okay, no problem. If you are not able to talk, it's okay बच्चा, कोई बात नहीं। You can send messages। और ये दूसरा ओपनिंग होता है ये वाला, इसको बोलते हैं ऑस्टियूलम। ये बड़ा ओपनिंग होता है जो फ्री एंड में होता है। ये छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं जो बॉडी सरफेस पे होते हैं। तो ये दो मेन ओपनिंग्स याद रखने आपको फाइलम पोरीफेरा में। बाकी हम लोग और भी पढ़ेंगे, फिलहाल इतना फोकस करो, ठीक है? सो पोर बियरिंग एनिमल्स मतलब पोरीफेरेंस होते हैं। वेरी सिंपल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है? नॉट एन इशू बच्चा। उपमन्यु कोई बात नहीं, इट्स ओके। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक, यू ऑल कैन सी क्लियरली। बोर्ड क्लियर है, मेरी आवाज क्लियर है, सब लोग कंफर्टेबल है? ग्रेट। चलो फिर पढ़ते हैं अभी इनका। सबसे पहले हैबिटेट, कहाँ रहते ये? वेयर यू फाइंड देम, हैबिटेट, place of living। So obviously this is a aquatic group, aquatic animals का group है। So they live in the water। Again in water there are two waters where they can live। आप लोगों को पता है वो कौन सा water? Majority are marine, they live in sea water, and very few are there which live in a fresh water। आप लोगों को नाम पता है वो वाला कौन सा? बताओ मुझे। फ्रेश वाटर बोला तो इमीडिएटली क्या आना चाहिए दिमाग में? स्पॉन्जिला। हाँ, स्पॉन्जिला, वेरी गुड। यस, स्पॉन्जिला ही एक है जो फ्रेश वाटर स्पंज है, बाकी के सब सी वाटर में पाए जाते हैं। तो सिंपल है हैबिटेट के बारे में।
Now again there are two possibilities. Whether they remain attached to the support or they can swim. है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ टर्म्स पढ़ा है हमने इनिशियली. यू रिमेम्बर दिस? सेडेंटरी. याद है ये वर्ड? सेडेंटरी का मतलब क्या होता है और फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है? याद करो फटाफट, चलो जल्दी जल्दी बताओ. उर्वशी नॉट टेलिंग. Sedentary means fixed or attached, and Very free living means they can move. Very good, very nice Tera. So sedentary means they remain fixed. यहाँ देखो ये सपोर्ट है, इसको हमेशा वो चिपक के रहते हैं. ठीक है, अब कौन चिपक के रहता है? So when they are adults, mostly adults होते हैं वो sedentary होते हैं, हमेशा वो चिपक के रहेंगे. Okay, sedentary होते हैं. But when they are larvae, they can swim. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, याद रखना है आपको. क्या बोला मैंने? When they are adults, they remain attached. When they are young, when they are larvae, they can swim freely. और ये जरूरी भी है. क्यों जरूरी है बताओ? क्योंकि अगर ये एक ही जगह पे फिक्स रहेंगे, अटैच रहेंगे, तो there will be a very huge group or a cluster, है कि नहीं? बहुत बड़ा क्लस्टर हो जाएगा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसी एरिया में. तो इन ऑर्डर टू डिस्पर्स, फैलने के लिए, अलग अलग जगह पे मूव करने के लिए, माइग्रेट होने के लिए ये लार्वल स्टेज जरूरी होता है, जो कि फ्लैजेलेटेड होता है. मतलब वो उनमें वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से वो दूर दूर तक फैल सकते हैं. सो दैट इज व्हाई यू कैन रिमेंबर दिस. These larvae are free living or they can move, they can swim. Am I clear children? समझ में आया ये वाला? बोलो जल्दी जल्दी. हो गया ये. अब कभी कभी अकेले भी रहते हैं. मैंने बोला है ये सब टर्म्स आप लोगों को इनिशियली आई हैव गिवन यू दिस टर्म्स. They live alone or they live in the group. Tell me the technical words. Sometimes they live alone, sometimes they live in group or in a colony. Tell me the technical term. फटाफट बोलो जल्दी जल्दी. Yeah, great. Solitary and colony. Very good उपमन्यु. Yes. अकेले रहते तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? Solitary. And अगर ग्रुप में रहेंगे तो colonial. So sometimes they live alone, sometimes they live in a group. Exactly. That is solitary भी हो सकते हैं, colonial भी हो सकते हैं. अब आ जाओ अपना वाला कैरेक्टरिस्टिक्स. और वो क्या है? ये जो एडल्ट होते हैं, जो अटैच होते हैं, फिक्स होते हैं, इनमें याद रखो दे आर ससाइल. ससाइल बोले तो क्या रहे बच्चे लोग? अगर मैं बोलूं ससाइल तो उसका मतलब क्या होता है? नहीं सुना ये वर्ड आपने कभी? बोलो बच्चों, ससाइल मतलब? So does sessile mean sedentary? Okay children. So आगे बढ़ते हैं. आई होप नाउ यू ऑल अंडरस्टूड दिस. मैंने पूछा था ये इसका मतलब क्या होता है? ससाइल मतलब? बोलो जल्दी जल्दी. व्हाट डू यू मीन बाय ससाइल? नहीं सुना है कि ये वर्ड? Attached to the substrate. या बट विदाउट एनी स्टॉक. जैसे हम लोग फ्लावर में बोलते हैं ना, इट हैज गॉट अ स्टॉक, नॉट स्केलेटन बॉडी. उपमन्यु बच्चा,
बिना स्टॉक के, बिना किसी कनेक्शन के, डायरेक्टली बॉडी इज अटैच्ड टू द सपोर्ट, उसको बोलते हैं ससाइन। जस्ट रिमेंबर दैट। आगे बढ़ो। नाउ कम्स अपना जो बेसिक क्राइटेरिया हमने पढ़ा था वो वाला, व्हाट काइंड ऑफ सिमेट्री डू दे शो, याद आया ये वाला? व्हाट काइंड ऑफ सिमेट्री डू दे हैव, याद करो। मेजॉरिटी ऑफ देम दे हैव गॉट एसिमेट्री, बट कुछ है जिनमें रेडियल सिमेट्री भी होता है, बराबर ना? मोस्ट ऑफ देम दे आर एसिमेट्रिकल, वेरी फ्यू आर कैसे होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल। याद है मीनिंग इसका? रेडियल मतलब कैसे? लाइक दैट स्पोक्स ऑफ ए व्हील, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। तो वैसा दिख सकता है इनका सिमेट्री। चलो नेक्स्ट थिंग यू टेल मी अबाउट जर्म लेयर्स। हाउ मेनी जर्म लेयर्स डू दे हैव? कितने जर्म लेयर्स हैं उनमें? 2 germ layers. यस, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट डू यू कॉल देम? याद आए ये वर्ड? Diploblastic. Diploblastic. Very good. So they have 2 germ layers, so they are diploblastic. Then comes body pattern या body plan. यही सब हम लोगों ने बेसिक क्राइटेरिया पढ़े हैं ना? बॉडी प्लान कौन सा होता है उनका? बॉडी प्लान बोले तो क्या मतलब? whether they have both mouth and anus, or they have only one opening, or they do not have mouth also and anus also. बताओ जल्दी जल्दी। Aggregation plan. या सेल एग्रीगेशन, याद करो ये वाला वर्ड, सेल एग्रीगेशन प्लान। मतलब they don't have mouth, they don't have anus, very poorly developed alimentary canal they have got, right? I hope you all know this. सीलोम वगैरह नहीं होता इनमें, है कि नहीं? बराबर है बच्चों? समझा? Come on, tell me, you all understood this? यही सब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने। सीलोम में क्या बोलेंगे हम लोग? एब्सेंट, दे आर एसीलोमिक्स। और ये जो जो स्पॉन्जेस हम लोग पढ़ रहे हैं, दे ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम वन एंसेस्टर जिसका नाम होता है प्रोटीरोस्पॉन्जिया। इनका जो एंसेस्टर है उसका नाम याद रखो, इवॉल्व्ड फ्रॉम वन एंसेस्टर जिसका नाम है प्रोटीरोस्पॉन्जिया। याद रहेगा ये नाम? कैन यू सी द होल बोर्ड? कुछ मिसिंग है? बराबर दिख रहा है सब लोगों को? Come on, tell me children, is it comfortable? Proterospongea, ये होता है कौन? इनका एंसेस्टर जिनसे ये इवॉल्व हुए हैं, और इसको ही हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये वाला जो मैंने यहाँ नाम लिखा है, इसको ही बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। इसके बीच का कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। याद रखो ये नाम, प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, इनके बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। इफ यू वांट टू सी हाउ इट लुक्स, ये प्रोटीरोस्पॉन्जिया कैसे दिखता है, अगर आपको देखना है तो यहाँ देखो, आई गॉट इमेज आल्सो ऑफ द सेम। ये देखो, ये है आपके सामने एक इमेज, दिस इज ऑल अबाउट द एंसेस्टर, और यही मैं बात कर रहा था आप लोगों को। ठीक है, तो इनमें ऐसा कोई एवोल्यूशनरी ट्री है नहीं, इनका सिर्फ एंसेस्टर का एक नाम याद रखो, which is here on your screen, you can watch it. नाम है प्रोटीरोस्पॉन्जिया। Am I clear? बोलो बच्चों, ठीक है, सब लोगों को समझ में आया? अब इसमें होता क्या है, you all can see there, क्या दिखेगा आपको? एक स्पेशल पार्ट, ये वाला जो बाहर जो भी डायग्राम ड्रॉ किया है अलग से, वो ये है स्पेशलिटी ऑफ दिस प्रोटीरोस्पॉन्जिया कॉल्ड एज ए कॉलर सेल्स। जो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, स्पॉन्जेस में एक स्पेशल सेल होता है, और ये कॉलर सेल्स या इसको ही बोलते हैं कोयानोसाइट, जो उनको डाइजेशन में मदद करते हैं। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच लुक लाइक फनेल हेल्प देम इन द डाइजेशन, कॉल्ड एज ए कोयानोसाइट्स और कॉल्ड एज ए कॉलर सेल्स। ये इनका बेसिक फीचर है, और ये नीट एग्जामिनेशन में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ था, याद रखो। द सेल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर डाइजेशन प्रेजेंट इन द पोरीफेरल्स। तो याद रखना ये नाम। आई होप नाउ यू ऑल गॉट लिटिल आइडिया अबाउट दिस। सब लोगों को समझ में आया इतना? ठीक है,
पढ़ेंगे हम लोग अभी इसके बारे में और डिटेल में। ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ विल प्रोसीड विथ इट्स बॉडी स्ट्रक्चर। अब हम लोग इनका बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो रेडी एवरीवन, मैं इरेज करूँ ये वाला बोर्ड पे जो लिखा हुआ है सब कुछ आप लोगों ने लिख लिया उसको? बोलो बच्चों, एवरीवन कॉपी डाउन दैट। चलो इरेज इट। अगर लिखा नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ो। So I'm erasing this now. मोहम्मद, आज कुछ बात नहीं कर रहे हो? कसम खाइए क्या बात नहीं करने की? यस बच्चा? नो सर। ठीक ना? ऑल इज वेल? यस सर। गुड गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। नाउ वी विल टॉक अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका। So when it comes to body structure, बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होगा? तो ये जो पूरा बॉडी वॉल है ये, इसमें 3 लेयर्स होते हैं। When you say the whole body wall, it is made up of 3 layers. और इन 3 लेयर्स के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो जो सबसे बाहर वाला बॉडी वॉल होता है, अगर हम इसी डायग्राम को थोड़ा सा सेक्शन वाइज पढ़ेंगे हम लोग, इफ यू टेक अ सेक्शन एंड सी द सेम, तो हमें क्या दिखेगा? यू विल सी दैट ये जो पूरा बॉडी वॉल है, हियर इट हैज गॉट 3 लेयर्स। यहां देखो भैया, you all can watch here. और इन 3 लेयर में से 1 लेयर will be outside, 1 layer will be middle and other layer will be innermost. ठीक है, ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा। ये इतना ही फोकस कर लो, चल रहा है। This much you can focus. So here will be the support. Look at this. कौन से 3 लेयर? So here is the outermost layer of the body, which is called as pinacoderm. Remember the name, pinacoderm. फिर जो innermost layer होगा, this will be called as choanoderm. यहाँ पे वो cells होते हैं, choanoderm. This will be innermost layer. फर्क समझ में आ रहा है? This is outer layer, this is inner layer, और इसी inner layer को attached या इसी inner layer में हम लोग क्या देखेंगे? वो funnel shaped cells जिनका नाम होता है कोएनोसाइट्स। अभी अभी हमने जो देखा था, या उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉलर सेल, जो डाइजेशन में मदद करते हैं। और इन दोनों के बीच में एक जेल लाइक सब्सटेंस होगा या जेल लाइक लेयर होगा, और इस जेल लाइक लेयर का नाम होता है मेसेनकाइम। The middle layer which is here, basically लोग 2 ही लेयर्स की बात करते हैं, हम लोग 3 लेयर याद रखेंगे। This is called as mesenchyme, which is a gel-like layer which is present between, कहाँ present है ये? Between pinacoderm and this choanoderm. Am I clear children? अभी इसमें होता क्या है या किस चीज का बना है वो भी आपको याद रखना है। When you say this pinacoderm, it is actually made up of 2 types of cells, जिसमें flat cells होते हैं जिनको pinacocytes बोलते हैं, oval cells होते हैं जिनको porocytes बोलते हैं। क्या होता है इसमें? When you say this outer layer, it has got 2 types of cells. कौन से 2 टाइप के cells? That is, of course, pinacocytes. इसका नाम ही है pinacoderm, तो इसमें pinacocytes नाम के cells होते हैं which are flat. Alright children. और दूसरे cells होते हैं oval in shape जिनको porocytes बोलते हैं। और ये porocytes नाम के cells जो है, they are responsible for formation of pores, जिनको हम लोग ओस्टिया बोलते हैं। Am I clear children? समझ में आया? This pinacocytes will give protection. Porocytes are responsible for production of or formation of pores और the ostia, और यही है वो छोटे छोटे छेद जिनको हम लोग बोल रहे हैं ostia, through which water enters inside. ठीक है? And when that water will enter inside, it will reach into this hollow cavity. इस hollow cavity को बोलते हैं osculum.
क्या बोलते हैं इस हॉलो कैविटी को? ऑस्क्यूलम। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस किडोस, ठीक है? या एट्रियम भी बोला जाता है इसको, कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एट्रियम। द हॉलो कैविटी इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम और एट्रियम। एंड देन ये वाला जो फ्री एंड है, ये एक एंड है जो अटैच टू द सपोर्ट है, ये वाला एंड है जो फ्री एंड है, और इधर एक बड़ा ओपनिंग होगा जिसमें से वाटर बाहर जाएगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज, क्या नाम है उस ओपनिंग का? ये मेक अ स्मॉल करेक्शन, इसका नाम है स्पॉन्जोसेल, और जो ऊपर वाला फ्री एंड है ये होता है ऑस्क्यूलम। तो मेक द स्मॉल करेक्शन, ये है स्पॉन्जोसेल और एट्रियम, और जहां से पानी बाहर जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्क्यूलम। समझ में आ रहा है बच्चों? बेसिक थिंग्स बता रहा हूं मैं, इजी है, कुछ है नहीं बड़ी बात इसमें। तो क्या क्या प्रेजेंट होगा इसमें? व्हेन यू से पिनाकोडर्म, ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर में दो टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलेंगे पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स ओवल होते हैं, दे प्रोड्यूस पोर्स, मतलब ओस्टिया। ये पिनाकोसाइट्स प्रोटेक्शन में मदद करेंगे। जब हम लोग बोलेंगे कोएनोडर्म, जो इनरमोस्ट लेयर है, इस इनरमोस्ट लेयर में क्या मिलेगा हम लोगों को? स्पेशल सेल्स, जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मैंने नाम बताया था इसका, याद करो बच्चों। व्हाट्स द नेम? फनेल शेप सेल्स इधर होते हैं, क्या नाम है इनका? अरे अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, कोलर सेल। ये वाले सेल, व्हाट इज द नेम? हाँ, कॉलर सेल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएनोसाइट। जब भी हम लोग कोरिफेरेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले ये हमारा नाम दिमाग में आना चाहिए, कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। अगर एक कॉलर सेल को हम लोग देखेंगे तो हाउ इट लुक्स, ये दिखता कैसे है? इनको ही हम लोग बोल सकते हैं लाइफ लाइन ऑफ द स्पॉन्जेस, या डाइजेशन में मदद कर रहे हैं ऑफ कोर्स, तो दे आर वेरी एसेंशियल। तो इसका अगर बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। उसमें सबसे पहले तो इट विल हैव लाइक दिस स्ट्रक्चर, ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा उनमें, ये होता है उनका कॉलर, ठीक है बच्चों? दिस इज देयर कॉलर, इसीलिए कॉलर सेल्स बोलते हैं। और इस कॉलर से अराइज होगा एक वीप लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है वीप लाइक स्ट्रक्चर का? फ्लैजेलम। एंड फाइनली दे विल हैव द लास्ट पार्ट which will be their body. ये लो, these are the parts, you can say body, collar and the flagellum. और ये flagellum का काम क्या क्या है? This helps in collection of the food. This also helps in transfer of the gametes, मतलब reproduction के टाइम में gametes को ट्रांसफर करने में भी ये मदद करता है। So डिफरेंट रोल्स आर परफॉर्म बाय द सेम, और ये एक ही पार्ट है पूरे बॉडी में उनके जिसमें फ्लैजेलम होता है, बाकी कोई भी पार्ट में फ्लैजेलम नहीं होता है, बाकी सब नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं। एम आई क्लियर विद दिस चिल्ड्रन? टेल मी, बोलो बच्चों, सब लोग कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. बेटा, हाउ अबाउट अदर पीपल? आशना, यस सर। समझ में आ रहा है बच्चा? उपमन्यु ने बोला यस। हाउ अबाउट अदर पीपल? यू कैन शो योर थम्स। चलो अपना अपना अंगूठा दिखाओ, थम्स अप, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा लेयर बचा है, वो तीसरा लेयर कौन सा है? ये मिडिल लेयर। नाम क्या है मिडिल लेयर का? बताओ मुझे, बोलो बच्चों, मिडिल लेयर का नाम क्या है? स्पीक, यू कैन टेल। नील, यू जॉइन लिटिल लेट ना, मेसेंकाइम। वेरी गुड ऊपर लिखा है, सामने है ना, मिडिल लेयर का नाम होता है मेसेंकाइम। और इस मेसेंकाइम में अलग अलग सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब ये कौन से सेल्स होते हैं? उनको हम लोग बोल सकते हैं, उसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, फिर उसमें अमीबोसाइट नाम के सेल्स होते हैं। सो इट हैज गॉट, क्या रहेगा इसमें अभी?
इट हैज गॉट कोलाजन फाइबर्स, मतलब व्हाइट फाइबर्स, आपने ये सुना है, येलो फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स। उसके अलावा इट कंटेन्स डिफरेंट सेल्स, जैसे कि आर्कियोसाइट्स, एक और इंपॉर्टेंट नाम आया सामने, आर्कियोसाइट्स। उसके अलावा देर आर सम मोर सेल्स कॉल्ड एज ए scleroblast. There are some more cells called as a scleroblast. तो कोलाजन फाइबर से, आर्कियोसाइट से, स्क्लेरोब्लास्ट से। अब ये दोनों सेल जो है, आर्कियोसाइट्स और स्क्लेरोब्लास्ट, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सम अमीबा शेप्ड सेल्स। उनको ही हम लोग बोलते हैं अमीबोसाइट्स। तो कुछ अमीबा शेप के सेल्स रहेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज अमीबोसाइट्स। दे गिव राइज टू डिफरेंट सेल्स लाइक दिस, आर्कियोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट। अब इनमें से ये जो स्क्लेरोब्लास्ट हैं, ये क्या तैयार करते हैं? दे प्रोड्यूस स्केलेटन ऑफ द स्पॉन्जेस। क्या तैयार करते हैं? स्केलेटन। और ये स्केलेटन किसका बना हुआ है? स्केलेटन ऑफ द स्पॉन्जेस इज मेड अप ऑफ सम नीडल लाइक सेल्स, जिनको बोलते हैं स्पिक्यूल्स। किसका बना हुआ है स्केलेटन? स्पिक्यूल्स का बना हुआ है। और ये जो आर्कियोसाइट्स हैं, ये आर्कियोसाइट्स दे प्रोड्यूस सम स्पेशल सेल्स, और उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं जेम्यूल्स। और ये जेम्यूल्स क्या है? जेम्यूल्स आर एक्चुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, जेम्यूल फॉर्मेशन। मतलब ये जेम्यूल्स आर नथिंग बट रिप्रोडक्टिव सेल्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। These are the reproductive cells. Am I clear, children? बताओ मुझे समझ में आया इतना? Quickly tell me fast. Yes, sir. Everyone is confident so far? जितना पढ़ाया उतना समझ में आया सबको? तो ये नाम याद रखना है कि इसमें ही मेसेनकाइम में कुछ अमीबा शेप सेल्स होते हैं, जिनके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे आर्कियोसाइट और स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट से स्पिक्यूल्स बनते हैं, मतलब उसका स्केलेटन बनता है। और जो आर्कियोसाइट्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाते हैं, जिनको बोलते हैं जेम्यूल्स। तो ये जेम्यूल इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोन बाय दीस। अब इनका मैं आपको थोड़ा डिटेल्ड व्यू या इमेज बताता हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे ये सब चीजें अभी अभी मैंने बताई हुई। इन्होंने 2 लेयर होते हैं ऐसा बोला है, बट यू ऑल रिमेंबर दोस 3 लेयर्स। बराबर है बच्चों? When you check this, अभी ये देखो इमेज, यहाँ पे सब कुछ है जो मैं बोल रहा था। Watch it carefully. दिख रहा है सब चीजें आप लोगों को? क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो वो मेसेनकाइम लेवल दिखेगा। Are you able to see, children, whatever I am asking? हाँ, देखो ये रहा वो मेसेनकाइम। कैन यू ऑल सी देयर मिडल लेयर जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बराबर है। फिर ये देखो इनर लेयर में रहेंगे ये कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स मतलब कौन? कॉलर सेल्स। इज इट देयर? है ना बच्चों? और ये देखो पोर्स क्रिएटेड बाय पोरोसाइट्स। डिड आई टेल अबाउट दिस? अभी अभी पढ़े ना हम लोग इसके बारे में। पोरोसाइट्स जो आउटर लेयर में होते हैं, आउटर लेयर का नाम क्या है? पिनाकोडर्म। उसमें होते हैं ये पोरोसाइट्स, और उनसे ये पोर्स बनते हैं। फिर देखो अमीबोसाइट्स। आर यू एबल टू वॉच दिस किडोज? आप जूम इन भी कर सकते हो, देख सकते हो। उर्वशी, यू गेटिंग दिस बच्चा? Yes. गुड। तो देखो उसमें अमीबोसाइट्स मतलब अमीबा शेप सेल्स है, और इन्हीं से बनते हैं कुछ और सेल्स। और सेल्स मतलब कौन से सेल्स? मैंने ऑलरेडी बताया आपको। इट इंक्लूड्स सेल्स लाइक आर्कियोसाइट्स एंड स्क्लेरोब्लास्ट। अब ये नहीं, स्क्लेरोब्लास्ट से बना हुआ है स्पिक्यूल्स। ये देखो लेबल बच्चा लोग, स्पिक्यूल्स। कैन यू ऑल सी देयर? हाँ कि ना? Yes, sir. यस। तो स्पिक्यूल्स मतलब उनका स्केलेटन होता है, जो नीडल लाइक सेल्स होते हैं। और यही नीडल लाइक सेल्स अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे उनको डिटेल में थोड़ा सा और बाद में। और ये हॉलो कैविटी है पूरा अंदर, जिसके अंदर पानी एंटर हो रहा है थ्रू ओस्टिया। ये दिख रहा है ना ब्लू एरोज, मतलब जिसमें से पानी एंटर हो रहा है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। लुक एट द लेबल, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज?
स्पॉन्जोसील, एम आई राइट? बराबर है। और अब क्या रहेगा, दिस ओपनिंग एट द फ्री एंड, यहाँ पे जो ओपनिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ बच्चों? ऑस्क्यूलम। एवरी लेबल इज क्लियर टू ऑल? टेल मी बच्चों, सब लेबल समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. कॉन्फिडेंट एवरीवन, याद रहेगा ये सब? अब ये स्पिक्यूल्स हम लोग बाद में भी पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में। ये देखो डायग्राम जो मैंने अभी अभी आपको बताया, यू ऑल कैन वॉच इट। कॉलर सेल्स और क्वानोसाइट्स, इसमें ये 3 पार्ट्स हैं। ये उसका बॉडी है, ये उसका कॉलर है, ये उसका फ्लैजेलम है, राइट? कॉन्फिडेंट एवरीवन? तो यही मुझे दिखाना था। अब ये देखो उसके स्पिक्यूल्स जो स्केलेटन का पार्ट है, हम लोग इसको बाद में एज अ स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ेंगे, पर ये इमेज देख लो आप लोग। Can you see here different shapes of these needle-like cells? इसमें 3 है, इसलिए इसको हम लोग what ट्राइलैमेलर बोल सकते हैं। फिर ये एक नीडल लाइक है, फिर ऐसे ही 6 रेज भी हो सकते हैं। तो हेक्सा, what you will call it as radiant, हेक्सा रेडिएंट एंड सो ऑन। तो ये अलग अलग टाइप के स्पिक्यूल्स हैं जो उनका स्केलेटन का काम करते हैं। कौन से लेयर में पाए जाएंगे ये बताओ मुझे? टेल मी किड्स, इन विच लेयर दे विल बी प्रेजेंट? यहाँ पर देखो ये वाला लेयर है बीच का, और इस बीच के लेयर का नाम होता है, क्या होता है? पढ़ो नाम। Mesenchyme. Exactly, mesenchyme. Ashna is not answering today. Why? What happened, Ashna? Comfortable नहीं हो बच्चा? Yes, Ashna. Yes, sir. What you said? क्या बोल रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना कॉन्फिडेंट है सब लोग? बॉडी लेयर्स बोला तो क्या क्या होना चाहिए सब लोगों को समझ में आया क्या? Is there anybody who has not understood these 3 layers और उनमें क्या क्या होता है? Can ask me. हाँ बच्चों बताओ, सब लोगों को समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े अभी हम लोग। Shall we proceed? इरेज करूं इसको मैं? आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया इसका या लिख के लिया? Yes, sir. टू राइट डाउन साइमल्टेनियसली। मैं तो सजेस्ट करूंगा आप लोग स्क्रीनशॉट के बदले ये मेरे साथ में लिखा करो, है कि नहीं? तो एक बार लिखने से एक बार प्रैक्टिस भी होता है ना। चलो फिर, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस। और अब आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट वी विल टॉक अबाउट, अभी इनका जनरल फीचर्स पढ़ेंगे हम लोग। जनरल फीचर्स मतलब क्या कि कौन से टाइप का डाइजेशन दिखाते हैं ये, कौन रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ऑल दैट वी विल टॉक नाउ। ठीक है बच्चों? रेडी एवरीवन? So let's explore them. चलो, तो स्केलेटन की बात कर रहे थे हम लोग अभी अभी, स्केलेटल सिस्टम। So what kind of skeleton do they have? They have got a skeleton which is made up of some needle-like cells. और क्या नाम है उन needle-like cells का बच्चों? हाँ बोलो, कुछ बताओ मुझे। Spicules. Needle-like cells called as a spicules. Correct. So they have needle-like cells called as a spicules, not spongy means बच्चा। Spongy fiber वो उसका क्या कंटेंट है, कॉम्पोजिशन है, उपवन्यु। Needle-like cells को हम लोग बोलते हैं spicules, और ये spicules कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए रहते हैं या फिर सिलिका के बने हुए रहते हैं। तो they may be made up of, किसके बने हुए रहेंगे? They will be made up of कैल्शियम कार्बोनेट और made up of सिलिका। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए रहते हैं या फिर सिलिका के बने हुए रहते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कैल्केरियस स्पिक्यूल्स या सिलिशियस स्पिक्यूल्स। क्या बोलेंगे हम लोग इनको? कैल्केरियस स्पिक्यूल्स और
siliceous spicules. I hope you understood the meaning. और इनके अलग अलग शेप्स होते हैं. They have got different shapes. जैसे अभी अभी हमने देखा था कि किसी में 4 रेडिएशन मतलब 4 रेज होते हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रा रेडिएट. किसी में 3 होते हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे ट्राई रेडिएट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो बच्चों. ट्राई रेडिएट, क्वाड्रा रेडिएट, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी रेडिएशंस दे हैव गॉट. किसी में एक ही होता है तो उनको मोनोक्सोन स्पिक्यूल्स बोलेंगे हम लोग. ये भी एक याद रखो नाम, मोनोक्सोन. मोनोक्सोन में दे विल हैव ओनली वन direction, like this they will be, है ना. ट्राई में they will look like this. टेट्रा में they will have 4 rays, so like this it is. Am I clear children? समझ में आया सब लोगों को? ये मोनोक्सोन यहाँ होते हैं ओस्टियम के नजदीक. ओपनिंग ऑफ दैट स्पंज का जो ओपनिंग है, फ्री ओपनिंग, वहां पे ये मोनोक्सोन स्पिक्यूल्स होते हैं. उसका लोकेशन है. क्लियर है सब लोगों को? स्केलेटन किसका बना हुआ है? तो बेस्ड ऑन दिस स्केलेटन, ये इनका स्केलेटन किस चीज का बना हुआ है? स्पॉन्जेस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा. आपके ये एनसीईआरटी में है नहीं है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ. थोड़ा सा अलग चीज है. कौन सी चीज बोल रहा हूँ मैं? इनके क्लासेस बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ substance they have there in skeleton or in their spicules. किसका बना हुआ है? They are divided into 3 classes. कौन से 3 क्लासेस? नाम देखो भी. तो सबसे पहला क्लास है इनका कैलकेरिया. नाम से ही पता चलेगा आपको. क्यों कैलकेरिया? बताओ मुझे. They are divided into 3 classes depending upon composition of the spicules. पहला क्लास रहेगा कैलकेरिया. रीजन बताओ मुझे, क्यों कैलकेरिया? They have a skeleton of calcareous spines. Exactly. Now their spicules or their skeleton is made up of calcium carbonate का. समझा? इजी है कि नहीं? और ये सी वाटर में ही रहते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन. सिर्फ समुद्र में ही पाए जाएंगे, नॉट इन द फ्रेश वाटर. और अभी एग्जांपल में देखते हैं हम लोग कुछ नाम इनका. तो व्हेन यू से दिस टाइप, तो इसमें साइकॉन अपना एक एग्जांपल आएगा, ल्यूकोसोलेनिया भी आएगा. तो 2 एग्जांपल याद रखो, साइकॉन और ल्यूकोसोलेनिया. इनके स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं. कोई शक? बोलो बच्चों, एनी डाउट अबाउट दिस? उपमन्यु, यू वांट टू से एनीथिंग? यस बच्चा, कुछ पूछना है किसी को? स्पॉन्जिन फाइबर भी होता है, अभी मैं वही बताने जा रहा हूँ. अब दूसरा वाला जो है वो है हेक्सैक्टिनेलिडा क्लास. क्लास नंबर 2 हेक्सैक्टिनेलिडा. पढ़ना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स है. शायद से आप लोग सडनली ये पढ़ रहे हो तो शुरुआत में आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, अलग है. यू माइट फील लाइक टू गिव अप, बट यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट सपोज्ड टू. है कि नहीं? तो एक्सेप्ट द चैलेंजेस. लिख के प्रैक्टिस करो तभी ये लर्न हो जाएगा. समझा बच्चे लोग? अब ये सब आपके एनसीईआरटी में नहीं है. दिस विल बी देयर आफ्टर 12th स्टैंडर्ड. तो आप लोग अभी एडवांस में पढ़ रहे हो, बिकॉज यू शुड बी 1 स्टेप अहेड इफ यू आर लर्निंग फॉर नीट एग्जामिनेशन. है कि नहीं? तो हेक्सैक्टिनेलिडा इज द क्लास नंबर 2. अभी इसमें जो उनके स्पिक्यूल्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सिलिका. ये वाला. तो स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ सिलिका, इसे इनको बोलते हैं हेक्सैक्टिनेलिडा. आई होप यू आर अंडरस्टूड, यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें बेसिकली ये हेक्सा रेडिएट ऐसे वाले स्पिक्यूल्स होते हैं. हेक्सा मतलब 6 ना, 6 रेज वाले स्पिक्यूल्स होते हैं. 6 रेज. दे हैव गॉट स्पिक्यूल्स विद द 6 रेज एंड ये भी मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं. और एग्जांपल में हम लोग इनमें 1-2 एग्जांपल ऐड कर सकते हैं. एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है यूप्लेक्टेला. इसको कॉमनली क्या बोलते हैं बताओ मुझे? पढ़े ना हम लोगों ने शुरुआत में इसको. वीनस फ्लावर फ्लावर बास्केट. वीनस फ्लावर बास्केट. वेरी गुड बच्चा. तो ये वाला मरीन स्पंज है जिसमें 6 रेज वाले स्पिक्यूल्स होते हैं और वो सिलिका के बने हैं. इसलिए क्लास में
क्लास एग्जैक्टली नहीं था। इजी है कि नहीं बताओ मुझे, एवरीवन टेल मी, हाँ कि ना? ठीक है कि नहीं बताओ मुझे, शो योर थम्स। नील नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन, बच्चा कोई दिक्कत है? नील, आर यू देयर? Am I audible? You can hear me, can tell me. Yeah. जैनब का थंब दिखा मुझे खाली, और उपमन्यु का मैसेज। What about other kiddos? उर्वशी, you followed this बच्चा? Yes, sir. ठीक है? Yeah, आशना also. I'm asking Neil, are you there बच्चा? Neil attend कर रहे हो ना लेक्चर? Then come forward and tell me. Class number 3. Desmospongia. बोलो इसको, read it. How do you pronounce it? Desmospongia या Desmospongia बोल दो चलेगा। और इसमें स्पॉन्जिंग फाइबर्स होते हैं। Spicules are made up of sponging fibers. किस चीज के बने हैं? स्पॉन्जिंग फाइबर्स के बने हैं। Am I clear? Okay. या फिर you also can say they may be made up of silica or they may be made up of calcium carbonate, या कभी कभी इनमें स्पिक्यूल्स पाए भी नहीं जाते, sometimes both sometimes none, like that. और इसका एग्जांपल है, नाम से ही मीनिंग हमें पता चलता है। एग्जांपल है ड्यू स्पॉन्जिया, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? बाथ स्पंज। या फिर दूसरा एग्जांपल होगा स्पॉन्जिला, नाम में ही है ना, देखो स्पॉन्जिंग स्पॉन्जिंग, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिया। और एक और नाम आप याद रख सकते हो, ये क्लियोना। इसके बारे में कुछ बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले, याद करो क्लियोना क्या था? Did I tell anything about this क्लियोना? It produces sulfur acid. सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड ज़ेना, यस स्मार्ट गर्ल। ये सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने वाला है। और इनमें से भी हम लोगों को पता है, ये वाला खाली फ्रेश वाटर वाला है और बाकी के सी वाटर वाले है ना। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाले स्पॉन्जेस फ्रेश वाटर में भी रहते हैं या फिर सी वाटर में भी रहते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट these 3 classes चिल्ड्रन। कॉन्फिडेंट है सब लोग? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? और इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग YouTube में जाओ, वहां पे वीडियोस देखो। आप लोग कोई ऐप में देख रहे हो तो उसमें देख लो, कोई भी टेक्स्ट बुक रेफर करो, कोई भी सप्लीमेंट्री नोट्स आपका आकाश का, एलेन का, पेस का, यू कंपेयर माय नोट्स विद देयर नोट्स एंड देन यू टेल मी द डिफरेंस। हाँ, फ्रेश मतलब वही फ्रेश वाटर, भूल गए क्या? स्पॉन्जिला, ये बताया ना हमने, सबसे पहले यही चीज पढ़ी थी। स्पॉन्जिला इज द ओनली वन विच इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर, बाकी के सब सी वाटर में पाए जाते हैं। याद आया? उपमन्यु बोलो बच्चा। और अभी मैंने जो दूसरी चीजें बोली वो भी, यू डोंट हैव टू रेफर एनीथिंग, यू जस्ट फॉलो माय नोट्स एंड यू आर गोइंग टू क्रैक द नीट। रिमेंबर दैट यू शुड बी रेडी टू पुट एफर्ट, हार्ड वर्क। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट थिंग, इनके बारे में अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हाउ डू दे रेस्पायर, उनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है। ये लिख लिया आप लोगों ने? चला इरेज दिस, कंट्रोल एक्स कर दो इसको मैं। कम ऑन टेल मी चिल्ड्रन, हैव यू कॉपीड डाउन दिस, नोटेड डाउन दिस, स्क्रीनशॉट? Yes. ओके, कल वाला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया आप लोगों ने, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला? बोलो बच्चों, एनीबॉडी? Yes, sir. ओके, वेरी गुड आशना, नाइस। तो टाइम टू टाइम कंप्लीट करो तो अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कीप ऑन सॉल्विंग ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व्हाटएवर आई एम शेयरिंग टाइम टू टाइम। ठीक है, चलो अभी इनके बारे में हम लोग बोल रहे थे कि उनका रेस्पिरेशन कैसे होता है, हाउ डू दे रेस्पायर, ब्रीथ। तो रेस्पिरेशन इज, दे डोंट हैव एनी सिस्टम, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। ये सबसे सिंपल ग्रुप होता है एनिमल्स का, इनमें कोई भी सिस्टम नहीं है, सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन इज बाय
जनरल बॉडी सरफेस। कैसे होगा इनका रेस्पिरेशन? बॉडी सरफेस से होगा। बॉडी सरफेस इज नथिंग बट व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इज प्राइम मिनिस्टर, है ना? पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, बराबर कि नहीं बच्चों? और एंड द वे हाउ इट विल बी gases will be exchanged is this a very simple phenomenon जिसको हम लोग बोलते हैं diffusion. Am I clear? बोलो जल्दी जल्दी, हाँ कि ना? Confident everyone? Neil, बोलो बच्चा। What is PM? क्या बोल रहे हो? PM. ये मतलब प्राइम मिनिस्टर। अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। What is this? Plasma membrane is the organ जिसमें एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन होगा गैसेस का, O2, CO2 एक्सेट्रा। हो गया रेस्पिरेशन, इतना ही याद रखना है आपको। अब अगर हम लोग उनका नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, कोई सिस्टम होता ही नहीं है। तो वेदर इट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम और वेदर इट इज नर्वस सिस्टम, कुछ नहीं है। दे लैक ऑल द सिस्टम्स, तो ऑब्वियसली दे डोंट हैव न्यूरॉन्स। इनमें न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, बट दे रिस्पॉन्ड। फिर भी वो रिस्पॉन्स दिखाते हैं, क्योंकि हमने वो लाइफ का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था, रिस्पॉन्सिवनेस। याद आया फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने जो पढ़ा है? दे डोंट हैव न्यूरॉन, स्टिल दे शो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। और ये रिस्पॉन्स के लिए उनके पास कुछ सेल्स होते हैं जो उनका मिडल लेयर होता है उसमें ही, और उन सेल्स का मिडल लेयर नहीं, आउटर लेयर में वो सेल्स होते हैं जिनका नाम हमने ऑलरेडी पढ़ा है। आप लोग बताओ मुझे कौन से सेल्स होते हैं आउटर लेयर में? आउटर लेयर का नाम बताओ सबसे पहले तो। यस किड्स, कम ऑन, टेल मी क्विकली। पिनाकोडर्म। वेरी नाइस देना। और उन सेल्स को क्या बोलेंगे हम लोग पिनाकोडर्म्स में? पिनाकोसाइट्स। याद आया? पिनाकोसाइट्स नाम के सेल से जो रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो सरफेस एरिया होता है वो कम ज्यादा कर देते हैं। तो सरफेस एरिया को कम और ज्यादा करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। हाउ वाज दैट? कैसा था बच्चों? समझा इतना? कोई शक? स्पीक अप बेटर। ठीक है, तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो कीप कॉपिंग डाउन दीज नोट्स व्हाटएवर आर देयर। और अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग, मैंने बोला है कंपेयर करो मेरे नोट्स या ऑल द इंफॉर्मेशन डिटेल्स आई एम गिविंग यू विद एनी रिसोर्स यू हैव। यू विल कम टू नो कि ये वर्ड हैं जो आप लोगों को नीट को क्रैक करने में मदद करेंगे। ठीक है, चलो अगला वाला कैरेक्टर हम लोग बताते हैं। इसका रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो हाउ इज देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो दे हैव गॉट बोथ द वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। दोनों मेथड्स या वेज से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। दोनों मतलब कौन से बताओ बच्चों? द मोमेंट आई से टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हमारे दिमाग में वो दो टाइप्स आते हैं। लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, या आपने 10th में भी पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। क्या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? नील, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम यू। बच्चा मोहम्मद बताओ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से होते हैं? Who left the meeting? Sexual and sexual. ठीक है, अभी Neil is not there in the meeting. है तो फिर कौन कम हो गया? एक बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ो चलो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होगा? तो दिस विल इन्वॉल्व बडिंग, रीजनरेशन और जेम्यूल फॉर्मेशन। 3 मेथड्स होते हैं इनमें। बडिंग होता है, रीजनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इनका। अगर आप स्पॉन्जेस को ऐसे स्मैश करके पानी में फेंकोगे
तो हर एक छोटा छोटा पीस से नया स्पंज तैयार होगा। तो इनमें बहुत ग्रेट एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है, फिशन नहीं होगा इनमें, उपमन्यु, ठीक है, दे डोंट शो फिशन, वो प्रोटोजोन्स में होता है, अमीबा में होता है। और एक टाइप होगा इनमें जिसको हम लोग बोलते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन। अब ये आपको 12th स्टैंडर्ड में रिप्रोडक्शन चैप्टर ही है, उसमें ये जेम्यूल फॉर्मेशन डिटेल में रहेगा आपको। फिलहाल मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा, लिटिल बिट आई गिव यू आइडिया। ये रीजनरेशन में कौन बताया था पहली बार, उनका नाम दे रहा हूं मैं साइंटिस्ट का, इट वाज H.W. विल्सन। इन्होंने पहली बार रिपोर्ट किया था ये रीजनरेशन इनमें। H.W. विल्सन ऑब्जर्व दिस रीजनरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। समझा इतना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर विल बी ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So when you say sexual reproduction, इसमें gametes involved होंगे, there will be formation of gametes, fusion of gametes, zygote बनेगा। अब ये sexual reproduction की बात जब आएगी तो आपको एक वर्ड याद रखना है कि they are hermaphrodites। ये सब sponges hermaphrodites होते हैं। What do you mean by hermaphrodites? याद करो quickly। हमने सुना ये वर्ड हर्माफ्रोडाइट, मतलब आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है। कैन एनीबडी टेल मी दिस? कौन बताएगा मुझे बच्चा लोग हर्माफ्रोडाइट्स का मीनिंग? नोबडी रिमेंबर? कभी नहीं सुना ये पहले? ज़ैनब बोलो बच्चा। No, sir. उपमन्यु, have you heard the word? Earthworm. Hermaphrodite means having both male and female gametes. So Reproduction. sexual organ. Yeah, very nice, उर्वशी, good. तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब है बाइसेक्सुअल, एक ही एनिमल में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल का भी और फीमेल का भी। मेल का मतलब वो टेस्टिस, फीमेल का मतलब ओवरीज, पर यहाँ पे ये इनमें ऑर्गन्स नहीं होंगे पर गैमेट्स तैयार होंगे। दे विल प्रोड्यूस स्पर्म्स एज वेल एज एग्स, और इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। अभी हर्माफ्रोडाइट से मुझे एक याद आया कि कौन से एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं पूरे नॉन कॉर्डेटा में। उनका एक लिस्ट दे रहा हूं मैं और एक निमोनिक भी बता रहा हूं मैं, और वो है ये लेट्स hagfish. These are the animals which show let's see hagfish. सी भी एक और है उसमें, लेट्स सी hagfish. ये कुछ एनिमल्स के नाम है जो नॉन कॉर्डेटा में या प्रोटो कॉर्डेटा में, इनिशियल कॉर्डेट्स में आते हैं। दे आर बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। फुल फॉर्म देखो भी इनका, एल से होगा लीच। हैव यू हर्ड द नेम बच्चा लोग, लीच? बोलो मुझे, मालूम है कि नहीं मालूम है? लीच ब्लड सकर एनिमल जो मार्च में वगैरह होता है, आपने देखा है उसको, एवरीबडी नोज दिस, या सीन आल्सो, उपमन्यु ने देखा भी है उसको। ई से होगा अभी अर्थवर्म, अर्थवर्म में भी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक साथ में होते हैं। फिर टी से होगा टेपवर्म, ये भी आपने सुना है, मालूम है कि नहीं? टेपवर्म। सी से होगा टीनोफोरन्स। एस से होगा स्पॉन्जेस, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। सी से होगा टीनोफोरन्स, जो भी पूरा फाइलम है टीनोफोरा, वो तो बाइसेक्सुअल वाला ही है। और लास्ट वाला एग्जांपल है एगफिश। ये है एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को इस निमोनिक से याद रखनी है। हो जाएगा याद बच्चा लोग? बताओ मुझे, हाउ इज दैट? कोई शक? कम ऑन टेल मी, कैसा लगा? इजी था? ऑल आर कंफर्टेबल विद दिस? जब भी हम लोग हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे तो ये सब नाम आपके दिमाग में आने ही चाहिए, है ना? जरा अच्छा है? Yes, sir. डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल। देखो अभी तक जो आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा डिटेल में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ये बड़ा चैप्टर मैंने बोला, ये पहला फाइलम हम लोग पढ़ रहे हैं, और ऐसे अभी और 9 फाइलम नॉन कॉर्डेटा के, उसके बाद में कॉर्डेटा वाला पार्ट आएगा। तो साइमल्टेनियसली पढ़ते रहना कंटिन्यूअसली। ये वीडियोस, लेक्चर्स, जो रिकॉर्डिंग्स है आप सुनते रहो, जब भी लगेगा कि
कोई डाउट है, कोई शक है, इन दैट केस इफ यू वांट just ask me, I will share the video link with you people and then you can prepare. चलो आगे बढ़ते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं मैंने बोला. उसके बाद में जो फर्टिलाइजेशन होगा इनका वो बॉडी के अंदर होता है, मतलब गैमेट का फ्यूजन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन occurs inside the body, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन. समझ में आया? हम लोगों के जैसे ह्यूमन बीइंग्स के जैसे फिर फर्टिलाइज्ड एग्स वगैरह रिलीज होंगे या लाइक दैट. आगे इनमें एक और इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखो, आपको क्वेश्चंस में रहेगा ये, होलोब्लास्टिक क्लीवेज. द काइंड ऑफ अ क्लीवेज दे शो इज दिस. होता क्या है ये क्लीवेज? बाय द वे क्लीवेज मतलब आपने पढ़ा था जाइगोट के बाद में डिवीजन होके मोरुला बनता है, मोरुला से ब्लास्टुला. याद आया कि नहीं बच्चे लोग? याद आया? हमने जर्म लेयर्स के टाइम में Yes, पढ़ा sir. था. तो वही डिवीजन को बोलते हैं क्लीवेज. क्लीवेज इज दैट डिवीजन ऑफ जाइगोट इनटू नेक्स्ट स्टेज, फिर वो मोरुला होता है. तो ये क्लीवेज का टाइप याद रखो, होलोब्लास्टिक, जिसमें जाइगोट कंप्लीटली डिवाइड होता है. तो अलग अलग टाइप के क्लीवेज होते हैं एनिमल्स में, होलोब्लास्टिक, बीरोब्लास्टिक, बर्ड्स में बीरोब्लास्टिक होता है, अनइक्वल क्लीवेज. तो लाइक दैट. अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है. दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. बोले तो क्या? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है जब बेबीज बॉर्न होंगे, जब इनके यंग वंस पैदा होंगे, तो वो यंग वंस इनके जैसे नहीं दिखते हैं. जैसे हम लोग हमारी बात करेंगे, व्हेन वी आर बोर्न वी लुक अलाइक, वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स या ह्यूमन बीइंग्स. सेम पेरेंट के जैसे ही दिखते हैं हम लोग, ह्यूमन बीइंग्स के जैसे दिखते हैं. पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे आप लोगों ने बटरफ्लाइज वगैरह में भी सुना है, वो पहले लार्वल स्टेज में अलग दिखते हैं, दे लुक लाइक कैटरपिलर. फिर वो कैटरपिलर में धीरे धीरे चेंजेस होते होते होते, मेटामॉर्फोसिस होते होते फाइनली वो एडल्ट के जैसे दिखते हैं. नहीं, दिस इज डिफरेंट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. अच्छा, इनमें ये आपने टैडपोल देखा है ना? टैडपोल पता है सब लोगों को, यंग वन ऑफ द फ्रॉग. वो फिश के जैसा दिखता है पहले, फिर उसमें चेंजेस होके धीरे 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 फाइनली वो फ्रॉग के जैसा दिखेगा. मतलब अगर यंग वन एडल्ट के जैसा दिखेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट. अगर यंग वन अलग दिखेगा, फिर उसमें चेंजेस होते होते वो एडल्ट के जैसा दिखने लगेगा, फिर उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. मतलब जिनमें मेटामॉर्फोसिस होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं, जिनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता वो डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं. अब बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया? याद रखना ये वर्ड आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एवरीवन क्लियर? यू कैन शो योर थम्स इफ क्लियर. देन नहीं है तो फिर पूछो. आई टेल अगेन. वेरी गुड ज़ेना. ऑलवेज दीज टू स्टूडेंट्स गिव इमीडिएट रिप्लाई. मोहम्मद को भी समझ में आया, नील को भी. वेरी गुड, नाइस. अब अगली एक इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग चीज इनके बारे में सुनो आप लोग. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी था. लार्वे आर नॉट सेडेंटरी, मतलब लार्वे हमेशा फ्री लिविंग होते हैं. याद आया ये वर्ड? लार्वे डू नॉट रिमेन अटैच. तो ये जरूरी भी होता है. क्यों जरूरी होता है? मैंने बोला अगर लार्वे स्लीप नहीं करेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो फैलेंगे नहीं या फिर डिस्पर्स नहीं होंगे. तो फॉर डिस्पर्सल दिस इज नेसेसरी. और क्या चाहिए या और क्या होगा इनमें? यू कैन रिमेम्बर एक स्पेशल थिंग, ये लार्वे के नाम जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. सम एग्जांपल्स ऑफ लार्वे आई एम टेलिंग यू हियर, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, जैसे कि एम्फीब्लास्टुला एक लार्वा का नाम है. एम्फीब्लास्टुला इज द लार्वा. सुन रहे हैं सब लोग? Like that. There is Parenchyma. Another name, Parenchyma. समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे ही होता है ड्रैगन. ये कुछ उनके लार्वे के नाम है. और इनमें से जो पहले दो लार्वे हैं इनमें फ्लैजेलम होता है. These are flagellar. With flagellum. I hope you understood this.
समझा क्या? You can again remember this as very important question for your NEET. Expected question in your NEET is this. और एक चलो ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके नीट एग्जामिनेशन में, और वो है कि साइफा, ये जो साइकॉन है हम लोगों ने पढ़ा है, साइफा या साइकॉन, इट शोज वन स्पेशल फीचर, और वो स्पेशल फीचर होता है प्रोटोगाइनस। ये होता है प्रोटोगाइनस। बोले तो क्या? टेल मी, एनीबॉडी नोस प्रोटोगाइनस का मीनिंग क्या होना चाहिए? कोई आइडिया, कोई गेस? दिख रहा है बोर्ड सब लोगों को? इज इट कंफर्टेबल एवरीवन? प्रोटोगाइनस का मतलब होता है, प्रोटो मतलब हमेशा पहले ना, हमने पढ़ा है वो प्रोटोस्टोमिया, स्टोमिया, न्यूट्रोस्टोमिया, याद आया क्या वो वाला वर्ड, वो नाम? प्रोटो मतलब पहले, फर्स्ट। क्या ये प्रोटो मतलब क्या? फर्स्ट। और गाइनस आपने ये सुना है ना, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तो गाइनो मतलब किससे रिलेटेड होगा बताओ मुझे, टेल मी, अरे बोलो। एंड्रो मतलब मेल, गाइनो मतलब फीमेल, तो यहाँ पे प्रोटोगाइनस का मतलब होता है ओवर मैच्योर स्पर्म्स, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है, ये हर्माफ्रोडाइट्स है, तो इनमें वो फ्यूजन ना हो करके अवॉइड होने के लिए पहले कौन मैच्योर होगा? दैट इज ओवर मैच्योर प्रायर टू स्पर्म्स। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो जल्दी जल्दी, हाँ कि ना? Yes, sir. पहले ओवर मैच्योर होगा और स्पर्म्स बाद में मैच्योर होगा, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रोटोगाइनस। आप लोग फ्लावर में पढ़ोगे ये सब, जब फ्लावर्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं और उनमें भी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करना होता है, तो कभी कभी पहले गाइनोशियम एंड्रोशियम से पहले मैच्योर होता है, कभी कभी उल्टा भी होता है, एंड्रोशियम पहले मैच्योर हुआ, गाइनोशियम लेट मैच्योर हुआ, या फिर गाइनोशियम पहले मैच्योर हुआ, एंड्रोशियम बाद में मैच्योर हुआ। वो हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर में भी, यू विल हैव दैट पार्ट इन प्लांट्स। आई होप यू ऑल आर कॉन्फिडेंट विद दिस थिंग। इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये वाला भी जो प्रोटोगाइनस वाला पार्ट मैंने अभी बताया, वो भी एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज है। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट है? एनीबडी, एनी डाउट? टेल मी। No, sir. ठीक है, बाकी लोग, other students, confident everyone, noted down this, copied? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो स्क्रीनशॉट ले लो, पर ये होना चाहिए आपके नोटबुक में। और अब मैं इरेज करने जा रहा हूँ, चलाएं? करो इरेज। उर्वशी, shall I erase this? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट थिंग यू कैन रिमेम्बर अबाउट देम इज, एक और चीज है जो बाकी एनिमल्स में नहीं होगी, और उसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम। देयर इज समथिंग व्हिच दीज एनिमल्स शो, और उसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम या एक्विफेरस सिस्टम। कैनाल सिस्टम, और इट इज आल्सो नोन एज ए एक्विफेरस सिस्टम। इसका एक पिक्यूलियरिटी है, मतलब इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये कैनाल सिस्टम को ऑफनली कंफ्यूज किया जाता है आप लोगों को वाटर वैस्कुलर सिस्टम के साथ में। तो ये वर्ड भी आपको आएगा बाद में, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट इन स्टारफिश। स्टारफिश में होता है, मतलब इकाइनोडर्म्स में होगा ये, और ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, याद रहेगा बच्चे लोग। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज डिफरेंट देन कैनाल सिस्टम और एक्विफेरस सिस्टम। समझ में आया बच्चों? तो ये जरूरी होता है, ये मतलब जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके बॉडी में जो वाटर का एंट्री होता है उसको ही हम लोग कैनाल सिस्टम बोलते हैं। जो अभी ये भी एक इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन है, तो ये जो वाटर का एंट्री होगा वो कैसे होगा बताओ मुझे। सबसे पहले पानी एंटर होगा
ऑस्टिया में, बराबर है कि नहीं बच्चों? मूवमेंट ऑफ वाटर का भी बोल रहे हैं हम लोग, वाटर कैनाल सिस्टम, मतलब वाटर विल एंटर इनटू ऑस्टिया। आपको पता है वो ऑस्टिया क्या होते हैं? ऑस्टिया से कहाँ जाएगा? आगे बढ़ा, बताओ मुझे। नेक्स्ट वन, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। टेल मी, ये डायग्राम जो अभी हमने पढ़ा था, मोहम्मद तुम बताओ। यस बच्चे, मोहम्मद आर यू देयर? हेलो, ये वाला। तो ये रहा अपना H2O, यहाँ पे एंटर हो गया, मतलब ये था अपना ऑस्टिया। आगे बताओ चलो, इधर पहुंच जाएगा। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? ये होलो कैविटी को क्या बोलते हैं मोहम्मद? आपके लिए क्वेश्चन है ये। आर यू देयर मोहम्मद? सीलम। ये कैविटी का नाम क्या है? पढ़ो क्या लिखा है? स्पॉन्जोसील। और फाइनली यहाँ से वो पानी बाहर जाएगा, इसका नाम क्या होता है? क्या होता है? रीड इट बच्चा। ऑस्क्यूलम। हाँ, तो अभी डायरेक्शन में यहाँ पे क्या आएगा? ऑस्टिया के बाद में स्पॉन्जोसील और फाइनली ऑस्क्यूलम। अब बताओ मुझे सब लोग, समझ में आया बच्चे लोग? मतलब यहाँ से पानी अंदर जा रहा है और पानी के साथ में सब फूड वगैरह भी एंटर होगा। दैट विल बी डाइजेस्टेड बाय दोस डाइजेस्टिव सेल्स, जिनको हम लोग क्वानोसाइट्स बोलते हैं या फिर कॉलर सेल्स बोलते हैं। एंड देन रिमेनिंग वाटर विल मूव आउट ऑफ द बॉडी थ्रू दिस ओपनिंग कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कैनाल सिस्टम। डिड यू अंडरस्टैंड किडोस? बोलो बच्चों, समझा? तो ये लाइफ लाइन ऑफ स्पॉन्जेस है। दिस इज लाइक अ लाइफ लाइन ऑफ स्पॉन्जेस, जो किस चीज में मदद करेगा? इट विल हेल्प इन फूड गैदरिंग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। रोल क्या है इसका कैनाल सिस्टम का? दिस विल हेल्प इन फूड गैदरिंग। डू यू एग्री विद दिस? बोलो मुझे हाँ कि ना। Yes, sir. गैदरिंग में मदद करता है। उसके बाद में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में मदद करेगा। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में मदद करेगा। फिर रिप्रोडक्शन में जो स्पर्म्स वगैरह उनको मूव करने में मदद करता है, तो इट आल्सो हेल्प्स इन reproduction. In addition to that, it can also participate in removal of waste. Removal of waste. कोई शक? बताओ मुझे सब लोग, समझ में आया क्या होता है कैनाल सिस्टम? और उसका फ्लो ऑफ वाटर भी समझ में आया? ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम से आउट मतलब एग्जिट। ये भी ऐड कर दो, ऑस्क्यूलम के बाद में सीधा एग्जिट। I hope everybody is clear with this. हाँ कि ना? फाइन। अब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जो आप लोगों को नीट के लिए नहीं पढ़ना है। आप लोग हायर स्टडीज के लिए जाओगे तो पढ़ोगे, सिर्फ नाम दे रहा हूँ मैं। यू डोंट हैव टू लर्न द डिटेल्स। जैसे एस्कॉन टाइप, टाइप्स होते हैं उसके। एस्कॉन टाइप, ये जो हमने अभी पाथ बनाया, इसको एस्कॉन टाइप बोलते हैं। सबसे सिंपल, फाउंड इन केस ल्यूकोसोलेनिया। एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया, एस्कॉन टाइप। ऐसे एक दो टाइप और होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं साइकॉन टाइप, जो साइकॉन में मिलेगा। साइकॉन टाइप, फाउंड इन साइकॉन। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है? थोड़े ब्रांचेस वगैरह होते हैं, तब यहाँ पे ब्रांचेस नहीं है, उनमें ब्रांचेस रहेंगे। ल्यूकॉन टाइप, दैट विल बी इन डेस्मोस्पोंजिया। ये वाला ल्यूकॉन टाइप फाउंड इन डेस्मोस्पोंजिया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। समझ में आया बच्चों? इसको रैगॉन टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि वो रैगॉन में मिलता है, वो वाला टाइप जो हमने पढ़ा था। कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ रैगॉन टाइप। दैट वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट फाइलम किडोस। हाउ वाज दैट? टेल मी। पहला फाइलम हम लोगों ने अभी खत्म कर लिया इसके साथ। कैसा रहा? हाउ वाज दैट? वाज इट डिफिकल्ट? बोलो बच्चों।
Tell me. Was it difficult? Yeah, okay. Yeah, simple. Tell me. Okay. Fine. पढ़ना पड़ेगा, but you will have to revise this. ठीक है? Without revision, you will not be able to remember all these things. बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है. ठीक है? बहुत कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ने वाली है, ऐसे ही रिजल्ट नहीं आएगा. करेक्ट? That's why I started today's lecture with this quote. Learning is never done without errors and defeat. Mistakes होंगी, ठीक है, भूल जाओगे, मतलब लगेगा कि अभी नहीं चाहिए, गिव अप करना, ऐसा you will feel like that giving up, but you are not allowed to do that. You should not do that. ठीक है? तो कुछ अलग करना है हम लोगों को. जब बाकी बच्चे लोग आराम कर रहे हैं, रात में सो रहे, तो हम लोगों को रात में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो गोल अचीव होगा. ठीक है? वैसे ये सिर्फ लेक्चर्स में अच्छा लगता है, बट व्हेन इट कम्स प्रैक्टिकल देन इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो यू शुड लव द सब्जेक्ट, यू शुड लव द टॉपिक, तब ये सब पॉसिबल होता है. ठीक है? कितना पढ़ूं कितना नहीं पढ़ूं ऐसा लगना चाहिए. एनीवेज, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड किडोस. हम लोग अभी अगले वीक में मिलते हैं. ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली सेम डे सेम टाइम. कंफ्यूज नहीं होने का. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए 10 o'clock और 11 o'clock. तो पूरा टाइम टेबल आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक ऑल्सो. तो कीप स्टडिंग एंड टेक केयर चिल्ड्रन. बाय बाय. Bye. Thank you, sir.